Hi everyone, Namaskar. So this is the second series of Polity MCQ series और question and answer की series चल रही थी हमारी. Again, a set of 25 questions are to be discussed in this particular video. Rules are same. You need to pause the video after reading the question. You need to take a couple of minutes, think, analyze, and then mark your answer. Right? फिर आप explanation देख सकते हैं. चलिए. So question number 26 is, with reference to the Constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitations upon. Statement number 1 is legislative function. Statement number 2 is एग्जीक्यूटिव फंक्शन. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है विच इज बेस्ड आउट ऑफ पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी, वो किन किन फंक्शंस पे लिमिटेशंस लगाता है. पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन, दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. पॉज दिस वीडियो एंड मार्क योर आंसर. सो पार्ट 4 में बेस्ड है डीपीएसपी और आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी को टारगेट करता है. एंड द डेरिवेशन या इंस्पिरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कमिंग टू द क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन. सो नो, सिंस वी नो कि डीपीएसपी लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होता है, लीगली बाइंडिंग नहीं होता है स्टेट्स के ऊपर. इट्स मेरली अ काइंड ऑफ guidelines. It is merely a kind of guidelines or goals for the state or for the government as to how are they going to frame their policies and how are they going to run the government, right? So since it is not legally enforceable, it is not legally binding, and it is more in the nature of guidelines for the government to move forward, it does not constitute limitations upon the legislative functions or even the executive function as well. तो executive function पे भी कोई limitation नहीं है, because it's simply a moral compass for the state or for the government as to how are they going to carry forward their system, how are they going to frame the policies. तो basically एक rule है, एक set of rule है, guidelines है, जो कि legally binding नहीं है, right? तो इसलिए ये कोई लिमिटेशंस नहीं पोजेस करता, नहीं कॉन्स्टिट्यूट करता. आंसर इसका डी है, नीदर 1 नॉर 2. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट नंबर 1 सेज आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है. Article 30, statement number 2 says, Article 30 grants the rights to minorities, whether religious or linguistic. And statement number 3 says, the term minority has not been defined in the Constitution. Which of the above statements are correct? Correct पूछा है. Which of the above statements are correct? Pause the video, think, analyze, and then mark your answer. चलिए, तो स्टेटमेंट नंबर 1 पे अगर हम आते हैं, Article 29. So what does Article 29 says? Article 29 provides that any section of citizens residing in any part of India having a distinct language, script, culture of its own shall have right to conserve the same. Right? Or Article 29 grants protection to both religious minorities as well as linguistic minorities. तो क्योंकि Article 29 provides that any section of citizen of India जो कि किसी ऐसे सेक्ट से, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनकी अपनी खुद का कल्चर है, उनको उस सेक्ट को, उनको अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का पूरा राइट है. और इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, बिकॉज इट ऑल्सो सेज कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. राइट? सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, which cancels out option B and C. We are left with option A and D. Statement number 2 पढ़िए. Article 30
grants right to minorities, whether religious or linguistic. 30 grants following rights to minorities, whether religious or linguistic. So all minorities have this right. They have this right that they can establish and administer their educational institutions of their choice, right? तो इनको बिल्कुल आर्टिकल 30 ग्रांट करता है कि ये अपने सारे minorities, every minority, so article 30 grants that every minority shall have right to establish, administer educational institutions of their choice. So statement number 2 is also correct. ठीक है, statement number 2 is also correct. Coming to statement number 3, the term minority is not clearly defined in the constitution. Yes, this is also true. Minority however define नहीं किया है constitution में कि what exactly is meant by the term minority. तो answer हो गया D 1, 2 and 3. So all of the above statements are correct. Moving on to the next question, question number 28. What was the exact constitutional status of India on 26th January 1950? It's a very factual, very analytical kind of question. बहुत straightforward question है ये. Previous year question है, एनालिटिकल भी है, फैक्चुअल भी है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी टिपिकल क्वेश्चन है, बिकॉज हमें आदत नहीं होती कि हम इतने बड़े सिलेबस में इतने छोटे से और इतने सिंपल से क्वेश्चन को पढ़ें. कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी गलत होते हैं हमसे. तो चलिए लेट्स स्टिपुलेट कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब इंडिया का कैसा रहा है ना. तो as we know that the preamble to the Constitution of India is solely and solely based out of the objective resolution, right? And objective resolution which was drafted and moved by Pandit Nehru, adopted by Constituent Assembly. So date of adoption of Constitution is, we already know, date of adoption of Constitution is 26th November 1949. ठीक है, we already know this. And India was declared to be a sovereign democratic republic on 26th January 1950. ठीक है, तो and this is when the Constitution of India came into effect. This is when the Constitution of India came into effect, which is on 26th January 1950. This means that India is an independent nation governed by people through democratic means with no state religion, promoting social and economic justice for all, right? So Constitution of India has been adopted and has been enacted. It has been enacted, it has came into force on 26 January 1950. B is the correct answer, which says a sovereign democratic republic, because this is when India got its own constitution to be which came into effect on this very date. And how are other options not correct? How are other options? Yeah, how is statement number 2 correct? Let us see that aspect also. So preamble has been amended by, we have already seen while we were dealing with the section of preamble. Preamble has been amended by 42nd Amendment Act, which added 3 new words. Which were socialistic, secular and integrity. So socialist, secular and integrity were added via 42nd Constitutional Amendment Act in 1976. In 1976, right? तो originally 1950 में 26 जनवरी 1950 के टाइम पे इंडिया was a sovereign democratic republic, right? And not सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, सेक्युलर भी कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया था. सॉवरेन बिकॉज वी वर फ्री एंड नो अदर पावर, नो अदर ब्रिटिश रूल वॉज देयर above us to govern us. India was independent, India was sovereign, and it was having the constitutional status of sovereign democratic republic. So statement number B is the correct answer. Moving on to the question number 29. Next question.
कमिटीज के ऊपर है, काफी फैक्चुअल है, आ भी चुका है ये, और फैक्चुअल इसको थोड़ा सा जब याद करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा। करंट एस्पेक्ट से रिलेट किया गया है थोड़ा सा इस सवाल को, जैसे कमिटी रिकमेंडेशन पे अगर हम आए तो किस कमिटी ने क्या रिकमेंड किया है, लेट्स हैव अ लुक, रीड द क्वेश्चन एंड देन मार्क योर आंसर। कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, कमिटी रिकमेंडेशंस के ऊपर मैच द फॉलोइंग है ये सवाल, और कमिटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये पूछा गया है। तो सबसे नीचे से सबसे ऊपर से ही स्टार्ट करिए, कोई इशू नहीं है। चलिए, पॉइंट नंबर 1, के कस्तूरी रंगन कमिटी ने एनईपी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो कि 2022 में आया था, उसको रिकमेंड किया है या नहीं? तो यस, दिस इज द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन। यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 was drafted and ये आई है पॉलिसी टू डेवलप न्यू करिकुलम फॉर स्कूल्स, एंड this is one of the most significant changes that has been brought about in the country, which has been introduced by the new education policy। और ये एक ट्रांजिशन है फ्रॉम ट्रेडिशनल 10+2 सिस्टम से 5+3+3+4 का, राइट? सो 5+3+3+4 का ये एक ट्रांजिशन है, जो ट्रेडिशनल 10+2 सिस्टम था वहां से इसको 5+3+3+4 में एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफर किया गया है। 5 पिलर्स के ऊपर है ये एजुकेशन पॉलिसी, which is access, equity, quality, affordability and accountability। तो ऑप्शन 1 is correct। के कस्तूरी रंगन कमिटी ही है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन दी थी। पॉइंट नंबर 2, जस्टिस रोहिणी की रिकमेंडेशन मैच की गई है ओबीसी सब कैटेगराइजेशन एंड रिजर्वेशन से। सो यस, दिस ऑप्शन इज मैच्ड करेक्टली एज वेल। सो इट वाज बैक इन 2017 when this commission was set up by the president under article 340, to examine the issues of sub categorizations of other backward classes। so yes, again this option is also correct। statement number 3, justice BN Shri Krishna पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, तो बैक इन 2017 अगेन कल ही हमने एक सवाल डिस्कस किया था जहां पे राइट टू प्रिवेसी और राइट टू लाइफ और केएस पुट्टास्वामी जजमेंट की बात की गई थी। तो उसी केस से मिलता जुलता ये कमेटी है बीएन श्री कृष्णा कमेटी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में ये डिक्लेयर किया था कि privacy is also a fundamental right under article 21 which is right to life। केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में हमें ये चीज 2017 में पता चली थी। उसी के लाइंस पे the government in motion to take steps to bring a new data protection legislation for the country, a committee headed by Justice BN Shri Krishna delivered a report and draft a bill जहां पे इंडिया के data protection regime के बारे में बात की गई है। Again this statement is also correct। Fourth is स्वरण सिंह कमिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये तो बिल्कुल स्टैटिक्स है। फंडामेंटल ड्यूटीज केम बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह। तो ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, दिस पोर्शन वाज इन करंट अफेयर्स। एनईपी वाला जो इशू है वो करंट में था। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 1 says the Union of India is a wider expression than territory of India। आर्टिकल 1, 2, 3 की बात है इस क्वेश्चन में। आर्टिकल 1, 2, 3 के ऊपर ये सवाल है। Union of India is a wider expression than territory of India। Second statement says Article 2 deals with existing states of Union of India। Article 3 deals with new states that are not the part of Union of India। And statement 4 says laws made under Article 2 and 3 are not to be considered as amendment under Article 368 of the Constitution। So which of the above statements are not correct? Not correct पूछा है। Which of the above statements are not correct? Pause the video, read the question very carefully and mark your answer। तो स्टेटमेंट नंबर 1 पे आते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया
is a wider expression than territory of India. This statement is not correct. Why the statement is not correct? Because Union of India is not a wider expression than territory of India. Territory of India, whereas is the wider expression of Union of India. Why am I saying so? Because यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब होता है सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहां पे सिर्फ स्टेट्स की बात की जा रही है, वेराज टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज की भी बात की जाती है, ठीक है। इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन दैन यूनियन ऑफ इंडिया विच ओनली टॉक्स अबाउट यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट यूटीज। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट ही पूछा है, ये बिल्कुल मार्क रखा करिए क्वेश्चन में कि पूछा क्या है, पहले यही सर्कल कर लिया करिए, यू विल बी मोर अवेयर। सेकेंड स्टेटमेंट सेज आर्टिकल 2 डील्स विद एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर हम आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 इज रिलेटिंग टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी रॉन्ग हो गया। आर्टिकल 3, स्टेटमेंट नंबर 3 पे आइए। आर्टिकल 3 डील्स विद न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली 2 और 3 इंटरचेंज हुआ है। आर्टिकल 3 डील्स विद एग्जिस्टिंग स्टेट्स या चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात आर्टिकल 3 करता है। तो आर्टिकल क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 4, laws made under article 2 and 3 are not to be considered as amendment under article 368 of the constitution. This statement is correct because in the constitution through article 4 itself declares that laws made for admission or establishment of new states under article 2 या 3, establishment of new states or changes in the existing states via article 3 are not to be considered as amendments under article 368, क्योंकि इन लॉज को सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाएगा। यहाँ पे 368 के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी ही रिक्वायर्ड है इन लॉज में चेंजेस करने के लिए। दैट्स वाई स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ नॉन करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो 1, 2, 3 option C is your correct answer. 4 is the correct statement here. Moving on to the next question. In the context of India, which of the following is the correct relationship between rights and duties? Factual and analytical question. Pause your video and think and answer the question. Moving on to the statements. Statement A says rights are correlative with duties. Rights are correlative with duties. It can be true. Second statement पे आते हैं, rights are personal and hence independent of society and duties. No, ये तो नहीं होगा। राइट्स पर्सनल तो है बट इंडिपेंडेंट नहीं है सोसाइटी या ड्यूटी से, बिकॉज वाइल राइट्स कैन बी सीन एज इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट्स, दे आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी। इनफैक्ट राइट्स को हमेशा एस्टैब्लिश किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है सोसाइटी से थ्रू लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना। लॉज के थ्रू इनको प्रोटेक्ट किया जाता है एंड दिस इज द रीजन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सी पे चलते हैं। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ सिटीजन्स। इट सेज कि सिर्फ राइट्स ही जरूरी है और ड्यूटी जरूरी नहीं है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। तो अगेन इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। Both rights and duties play important roles in development and advancement of individual's personality. See, because rights provide individual with freedom and autonomy to make choices and pursue their interest, duties help to cultivate a sense of responsibility among the individual कि उनकी ड्यूटी क्या है, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, and it helps to shape a person's character and contribute to their growth. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट, duties not rights are important for stability of the state.
Again, this statement is wrong because both are important for stability of the state. See, again, rights serve as safeguard against state overreach and abuse of power. We are already aware about this term. It provides the citizens a safeguard from abuse or arbitrariness of the state. ठीक है, इसलिए स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए राइट्स भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी ड्यूटी जरूरी हैं. दिस ब्रिंग्स अस टू द करेक्ट आंसर विच इज ए. राइट्स आर correlative with duties. Obviously, rights and duties are interconnected and they complement each other. They complement each other. Rights and duties complement each other. जैसे rights का possession अपने साथ एक responsibility carry करता है to fulfill a corresponding duty, है ना, and fulfilling a duty can provide an individual with having a certain kind of right. इसलिए rights and duties complement each other. Statement A is the correct answer. Moving on to the next question. Under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? Simple question है, straightforward question है. List of fundamental duties से सवाल है. तो 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था. स्वर्ण सिंह कमिटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी. आर्टिकल 51A, ठीक है, और पार्ट 4A, ये फंडामेंटल ड्यूटी के बेसिक्स हो गए. और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ओनली फंडामेंटल राइट्स, नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया. कहाँ से बोरोड है? तो यूएसएसआर से बोरोड है और नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है. डीपीएसपीज की तरह ही ये नॉन जस्टिसिएबल है फंडामेंटल ड्यूटीज. जो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? Read the lines. Option 1 says to vote in public election. Option 2 says develop a scientific temper. Option C says to safeguard public property. Option D says to abide by Constitution and respects its ideals. तो इनमें से कौन सा fundamental duty नहीं है? Option A is correct. Very clearly option A आंसर है. सिंपल सा सवाल है, क्योंकि to vote in public elections is not a fundamental duty. There are list of 11 fundamental duties present in the constitution और ये आपको बिल्कुल मेमोरेबल होना चाहिए. ऑप्शन ए आंसर है. चलिए सेकंड, अनदर क्वेश्चन. With reference to Indian Council Act of 1909, consider the following statements. Read these statements carefully and mark your answer. करेक्ट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए लेट्स रीड द स्टेटमेंट. इट इंक्रीज्ड द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की बात पूछी जा रही है. पहला स्टेटमेंट है इट इंक्रीज्ड द साइज ऑफ legislative councils both central and provincial. Second statement says central legislative council was allowed to have a non-official majority. Third statement says it extended the principle of communal representation by providing a separate electorate for Muslim, Sikhs and Indian Christians. And fourth statement says it provided for the first time the association of Indians with the Executive Council of Viceroy and Governors. Which of the above statements are correct? Correct के बारे में सवाल पूछा है. Let's discuss the statements one by one. So first statement is correct, ठीक है. यहाँ पे काउंसिल एक्ट 1909 में इट कंसिडरेबली इंक्रीज्ड द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनका जो साइज था दैट वाज नॉट यूनिफॉर्म. वो एक सिंगल यूनिफॉर्म साइज नहीं था बट 16 से 60 बढ़ा दिया गया था. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को 16 से 60 बढ़ा दिया गया था. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज वाज नॉट यूनिफॉर्म. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अलाउड टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि
it retained official majority in Central Legislative Council but allowed Provincial Legislative Council to have non-official majority. Non-official की जो बात की गई है वो प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए रखी गई थी. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऑफिशियल मेजोरिटी डिक्लेयर कर दी गई थी. उन्होंने क्लियरली जो है रिटेन किया था ऑफिशियल मेजोरिटी. तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. 2 रॉन्ग है तो ए, सी और डी तीनों एलिमिनेट हो जाता है. बट चलिए हम आगे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. थर्ड स्टेटमेंट सेज इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन by providing separate electorate for Muslim, Sikhs and Indian Christian. Again this statement is wrong because सिर्फ Muslims के लिए separate electorate किया गया था by a system of communal representation और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सिक्स और क्रिश्चियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, नॉट वाया काउंसिल एक्ट 1909. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू सिक्स और क्रिश्चियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट वोटिंग के लिए बात की गई थी एंग्लो इंडियंस के लिए. ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए. तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 4 पे आते हैं. It provided for the first time association of Indians with Executive Council of Viceroy and Governors. Yes, तो पहली बार for the association of Indians with Executive Council of Viceroy and Governors it was provided, and Satyendra Prasad Sinha he became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. इनको एक law member की position दी गई थी सत्येंद्र सिन्हा को. ठीक है, तो 1 and 4 सही है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बहुत बेसिक और स्टैटिक सवाल था ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से. चलिए, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस या फंडामेंटल ड्यूटीज? अगेन अ वेरी बेसिक, वेरी स्टैटिक एंड वेरी एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उनका माइंड इनमें से किन ऑप्शंस को रिफ्लेक्ट करता है? वी ऑलरेडी नो द करेक्ट आंसर इज प्रियम्बल. ये PYQ भी रहा है. नाउ प्रियम्बल कैसे? तो प्रियम्बल सिंस वी नो इज बेस्ड आउट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया था. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर में 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इस प्रियम्बल के अंदर ऐड हुए. नाउ प्रियम्बल का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमने अपने प्रियम्बल वाले वीडियो में देखा था कि इट रेफर्स टू इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे समरी या असेंस है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी या असेंस है प्रियम्बल के अंदर में. वी ऑलरेडी नो दिस. इसलिए दिस इज द रीजन NA पालकीवाला ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ही रेफर्ड प्रियम्बल एज identity card of Indian constitution, and hence we can say preamble is the part of constitution that reflects mind and ideals of the framer. ठीक है, तो factual analytical है, previous year question है. Next question, with reference to national emblem of India, consider the following statements. National emblem पे question है एक. Statement 1 says it was officially adopted on 26th November 1949 by the Constituent Assembly. Second statement says it is taken from the Sarnath lion capital built during the reign of Ashoka. Statement 3 says it includes 4 Asiatic lions, a horse, a bull and an elephant. Statement 4 says the word Satyamev Jayate inscribed below the emblem is taken from Mundak Upanishad. Which of the following statements given above are correct? ठीक है, करेक्ट के बारे में पूछा है. पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नेशनल एम्बलम जो है उसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 जनवरी 1950.
right? On 26 January 1950, the lion capital of Sarnath officially adopted by Government of India as national emblem of India. However, the bell-shaped lotus from Sarnath pillar was omitted from the emblem. Bell-shaped pillar जो था उसको omit किया गया था आपके एम्बलम से. एम्बलम रिप्रेजेंट सील ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. अच्छा, पहले तो ये जान लीजिए, एम्बलम रिफ्लेक्ट्स द सील. इट इज द सील ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. रिपब्लिक ऑफ इंडिया जहां पे भी नोट पे या कहीं पे भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया को अगर आप देखेंगे तो एम्बलम उस पे बना होता है. तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट. Statement 2 is correct. Yes, it is taken from Sarnath lion capital, Sarnath pillar, और ये मौर्यन एम्परर अशोका के टाइम पे बनाया गया था. Statement 3 is also correct. If you see the image of Republic of India या emblem अगर आप देखेंगे, this is the emblem of India. If you see here, यहाँ पे 4 Asiatic lions हैं. This is symbolizing power, courage, confidence and pride. This is your lion number 1. So this is lion number 1. This is second. This is third. And fourth one is just behind the first one. ठीक है? तो 4 Asiatic lions हैं. यहाँ पे चक्र है ये 24 spokes है ना, 24 spokes which symbolize Buddhist धर्म चक्र. Then bull symbolizing hard work. यहाँ पे bull है which is symbolizing hard work. Here you have horse which symbolizes loyalty, speed and energy. और मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है, सत्यमेव जयते को. तो ये एम्बलम है. This represents Republic of India. This symbolizes Republic of India. ठीक है, तो ये पिक्चर है. कभी कई बार ना एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी, अब जैसे इसी से रिलेट करके एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है. हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ दीज काइंड ऑफ इमेजेस इन योर माइंड वेरी क्लियरली. तो एम्बलम एक 2D स्क्रिप्चर है विथ द वर्ड सत्यमेव जयते. मतलब ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स. ट्रूथ अलोन ट्रायम्स, इसका मतलब है इट्स द ट्रांसलेशन ऑफ सत्यमेव जयते. चलिए, यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया. स्टेटमेंट नंबर 1 वाज रॉन्ग, जिसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया है. स्टेटमेंट नंबर 2 सही था. मौर्यन रेन अशोका के टाइम पे इसको बनाया गया है, लिया गया है सारनाथ कैपिटल से. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट इंक्लूड्स 4 एशियाटिक लायन, हॉर्स, बुल एंड एन एलिफेंट. एंड ऑल्सो दे आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, दे आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये भी एक इन्फो है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. और ये यस, तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है. सो वी कम टू आंसर सी. स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, 2, 3, 4 करेक्ट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप इन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी. तो लॉ और लिबर्टी के बीच में बिल्कुल कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर सवाल है ये. लॉ और लिबर्टी के बीच में अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है? लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन. इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी. If there are more laws, there is less liberty. Statement B says, if there are no laws, there is no liberty. Statement C says, if there is liberty, laws have to be made by the people. And statement D says, if laws are changed too often, liberty is in danger. इन 4 स्टेटमेंट में से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा स्टेटमेंट है? Mark your answer. चलिए, coming on to the first question. First statement, I'm sorry. If there are more laws, there is less liberty. So yes, it can be true when laws are made to curtail liberty. This statement can be true. However, when laws are made to ensure liberty, तो less liberty वाली बात गलत हो जाएगी. ठीक है, तो statement 1 is wrong. स्टेटमेंट 2 पे आते हैं.
if there are no laws there is no liberty. So no law may result in huge encroachment by unlawful activities. अगर लॉ ही नहीं होगा तो अनलॉफुल एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और ऐसी एक्टिविटीज जो कि दूसरों की लिबर्टी पे, है ना, या तो दूसरों की लिबर्टी को डेंजर में डालेंगी या खुद की लिबर्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगी. तो it may result in huge encroachment by unlawful activities on others' liberty and create least or no liberty for others. तो दूसरों की लिबर्टी को curtail कर देगा, प्रॉब्लम मिला देगा. Hence the statement is correct. तो अगर कोई लॉ नहीं होगा तो दूसरों की लिबर्टी खतरे में आ जाएगी बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज. चलिए, स्टिल लेट्स गो ऑन टू अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो. if there is liberty, laws have to be made by the people. अगर liberty है देश में तो लोग ही laws बनाएंगे. It is not necessary. See, there can be liberty and there can be laws which are made by the government. So statement 3 is not correct. Statement 4, if laws are changed too often, liberty is in danger. So this might not be true क्योंकि laws अगर कई बार very often laws are being changed तो it can be to protect the individual's liberty also. तो liberty को और protect करने के लिए laws को change किया जा सकता है कई बार, इसलिए ये statement भी गलत है. Here answer is B. ठीक है, if there are no laws there is no liberty. चलिए, consider the following statements with reference to Foreign Contribution Regulation Amendment Act 2020 FCRA 2020 में काफी चर्चा में रहा है और इस पे सवाल है. तो पहला स्टेटमेंट है, The Act prevent the foreign contributions from going to any organization that government controls or owns. Second statement says, The Act gives the Ministry of Finance more authority to revoke a license for a period longer than 180 days. Statement 3 says, Act puts restrictions stating that only the State Bank of India in New Delhi may accept foreign donations. Which of the following statements are correct? Yes. So पहले थोड़ा FCRA के बारे में बात कर लेते हैं. Foreign Contribution Regulation Amendment Act 2020 exactly है क्या, थोड़ा ब्रीफ में इसको डिस्कस करते हैं. So 1976 में FCRA was enacted, है ना. 1976 में FCRA was enacted with an aim to regulate utilization of foreign contribution. जब भी foreign contribution होगा तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, अब उस यूटिलाइजेशन का रेगुलेशन FCRA करेगा. ठीक है, अब कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? सपोज देयर आर कॉन्ट्रीब्यूशंस या हॉस्पिटैलिटी बाय इंडिविजुअल्स और बाय एसोसिएशन to keep it consistent with values of a sovereign democratic republic. ठीक है, तो basically FCRA को enact किया गया to maintain strict control over voluntary organizations. तो जो voluntary organizations हैं उनकी contributions के ऊपर strict regulation रखने के लिए और political associations को लेके भी इट वॉज स्ट्रिक्टली एनेक्टेड. जिन पॉलिटिकल एसोसिएशंस को फॉरेन फंडिंग हो रही है, जिन पॉलिटिकल एसोसिएशंस को फॉरेन फंडिंग्स हो रही है उसको लेके भी इसका रेगुलेशन मैंडेटरी था. इसीलिए 1984 में एक अमेंडमेंट किया गया FCRA एक्ट के अंदर जहां पे इट वॉज रिक्वायर्ड दैट all NGOs, all non-government organizations have to register themselves with the Home Ministry. So in 1984 there was this amendment made jahan pe it was mandatory, it was required that every NGO of the nation has to register themselves with the Home Ministry. And then in 2010 में in 2010 act was repealed और फिर एक नया एक्ट आया विद अ मोर स्ट्रिंजेंट, विद अ मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन जिसको एनैक्ट किया गया. वहां ये क्या किया गया, वहां पे ये किया गया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010.
The Foreign Contribution Regulation Act of 2010 outlines conditions under which individual groups business in India may receive and use foreign contribution. Now recently 2010 के बाद 2020 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें कुछ चेंजेस आए. उन चेंजेस को हम इन स्टेटमेंट्स के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे. चलिए, पहला स्टेटमेंट, द एक्ट prevent the foreign contributions from going to any organization that the government control or owns. First statement is saying that act prevent foreign contributions from going to any organization that the government control or owns. तो yes, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या गवर्नमेंट ओन कर रही है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, एक्ट अलाउ नहीं करता है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ठीक है, स्टेटमेंट 2 पे आइए. द एक्ट गिव्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मोर अथॉरिटी टू रिवोक अ लाइसेंस पीरियड नॉट लॉन्गर देन 180 days. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, होम मिनिस्ट्री को ये लाइसेंस है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में ये एक्ट है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पे गलत है. 180 days तो सही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, होम मिनिस्ट्री. तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, विच ब्रिंग्स अस टू द आंसर ए 1 and 3. चलिए, स्टेटमेंट 3 भी देख लीजिए. द एक्ट पुट्स restrictions stating that only the State Bank of India in New Delhi may accept foreign donations. So this is correct. Only State Bank of India in New Delhi may accept foreign donations. बिल्कुल स्ट्रिक्टली restrictions लगाया गया है, बाकी किसी भी ब्रांच किसी भी बैंक में. ठीक है, सो आंसर इज 1 and 3 only, A. Next question. The Government of India Act of 1919 clearly defined a typical static question owing to the historical background of the Constitution. The Government of India Act of 1919 clearly defined, statement A, the separation of power between judiciary and legislature. Statement B, the jurisdiction of central and provincial government. Statement C, power of Secretary of State for India and the Viceroy. And statement D, none of the above. तो पहले तो थोड़ा सा बेसिक्स पे आइए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं. ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या एक्ट भी कहा जाता है बिकॉज मॉन्टेग्यू दैट टाइम वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है. It marked a greater step towards self-government. ठीक है, this act marked a greater step towards self-government for India, और this reform initiated the system of dual government. ठीक है, जहां पे divided powers होंगी between central and provincial states, मतलब provincial assemblies या provincial governments. इसके बाद डायरकी को भी इसी एक्ट ने एस्टैब्लिश किया. ठीक है, डायरकी विच मीन्स इन सर्टन की फंक्शंस, जैसे लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर के केस में it was reserved for British appointed governor, while other responsibilities such as education, agriculture, they were given to elected Indian members. तो डायरकी भी establish करी थी इसी एक्ट ने, and this act expanded membership of Indian Legislative Council and introduced separate electorate for 6 Christians, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस. ठीक है, और बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन भी इसी एक्ट के थ्रू आया था. डायरेक्ट इलेक्शन, तो ये मेजर पॉइंट्स थे इस एक्ट के अंदर में. इस क्वेश्चन का आंसर बी है बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम इसी एक्ट के थ्रू आया था. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग provisions under the directive principle of state policy as enshrined in the Constitution of India. DPSP के ऊपर सवाल है, एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़िए. Securing for citizen of India a uniform civil code.
अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर गांधीयन प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन डीपीएसपी। तो गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है ये देखना है। रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर। सी, वी ऑलरेडी नो कि जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी एंड दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच वाज एनंसिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, है ना। तो कुछ ऐसे आइडियल्स थे, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो कि गांधीयन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनको डीपीएसपीज में इन्वॉल्व किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे वी ऑलरेडी नो कि विलेज पंचायत को गांधी जी ने काफी ज्यादा प्रमोट किया है, कॉटेज इंडस्ट्री को रूरल एरियाज में काफी ज्यादा प्रमोट किया है। 2 और 3 तो होना ही चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, यहाँ 3 नहीं है। अब ऑप्शन बचता है बी और डी में। तो चलिए लेट्स रीड वन बाय वन। विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। 43 कॉटेज इंडस्ट्री को लेके बात की थी गई थी, आर्टिकल 43 में मेंशन्ड है। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिक्योरिंग फॉर सिटीजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में क्लासिफाई किया गया है, गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं, ठीक है। तो लिबरल प्रिंसिपल इसको क्लासिफाई किया गया है अंडर आर्टिकल 44। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 इज रॉन्ग, तो डी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन 2 एंड 3 ही सही है। स्टेटमेंट 4 पे आते हैं, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, a decent standard of life and social cultural opportunities for all worker classified under socialistic principle। पहली बात तो ये लेजर, रीजनेबल लेजर और ये एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात की गई है, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर में ये है, नॉट गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, आंसर है 2 and 3 ओनली। चलिए next question, one common agreement between Gandhism and Marxism is a very important UPSC previous year question. One common agreement between Gandhism and Marxism is statement A, the final goal of stateless society, B, class struggle, C, abolition of private property, and D, economic determinism। तो C इसका आंसर है A, ठीक है, स्टेटलेस सोसाइटी। अब स्टेटलेस सोसाइटी होती कौन सी है? स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब है अ सोसाइटी विच लैक्स अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, a society that lacks formal institution of government, this is defined as a stateless society। तो a state which is free, a state which is free from political findings, a state which is free from political bindings, ठीक है। पॉलिटिकल बाइंडिंग से अगर कोई स्टेट फ्री है तो वो स्टेटलेस सोसाइटी हो गई, वहां पे सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल्स मिलेंगे, सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल्स मिलेंगे। किसी भी आइडियल सिचुएशन में, इन एन आइडियल सिचुएशन जो स्टेट है उसको नहीं माना गया है, देयर इज नो स्टेट। एंड गांधी के कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य की जहां बात की गई है, स्टेट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल बाइंडिंग्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, तो इंडिविजुअल्स। तो गांधीज्म और मार्क्सिज्म में अब कार्ल मार्क्स ने क्या प्रेडिक्ट किया था? उन्होंने ये कहा था कि कार्ल मार्क्स प्रेडिक्टेड दैट प्रोलेटेरिएट्स विल रिवोल्ट एंड डिस्ट्रॉय ऑल क्लास, अल्टीमेटली लीडिंग टू अ स्टेटलेस सोसाइटी। दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स प्रेडिक्टेड। एंड स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड ऑर्गन ऑफ बोर्गियोजी, मतलब इट ओनली वर्क्स फॉर मेंटेनिंग द क्लास डोमिनेंस। देयरफॉर ही स्ट्राइव्स फॉर क्लास स्ट्रगल रेवोल्यूशन व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ स्टेटलेस सोसाइटी। इसलिए इन दोनों के अग्रीमेंट स्टेटलेस सोसाइटी के ऊपर ज्यादा आते हैं। तो अगर गांधी के आइडियल स्टेट की बात करें तो एवरीवन इज हिज ओन रूलर,
he rules himself in such a manner that is never a hindrance to his neighbor. In the ideal state there is no political power because there is no state. इसलिए स्टेटलेस सोसाइटी के ऊपर गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों के अग्रीमेंट पाए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज it determines the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of delimitation commission of parliament. Second statement says it acts as a court for settling disputes related to granting of recognition to political parties and allotting election symbols to them. तो basically ECI का कॉमन जो ऑफिशियल गोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है, उसके ऊपर ये सवाल है. कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, पहले तो ECI के ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ परमानेंट और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. आर्टिकल 324 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन ECI को डिस्क्राइब करता है. और चलिए स्टेटमेंट पे आते हैं. इलेक्शन कमीशन डिटरमिन the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of delimitation commission. Yes, this is correct, क्योंकि जो territories या constituencies determine होती हैं वो delimitation commission के ऊपर ही determine होती हैं. statement 1 सही है. दूसरा, to grant recognition to political parties and allot election symbols. Yes, they act as a court for settling disputes related to granting recognition. So whenever parties split, there are chances of dispute arising over claims to its election symbol. इसलिए ECI जो है इन्हीं matters को adjudicate करता है. और yes, this statement is also correct. So both 1 and 2 are correct. Election Commission has been in news recently काफी ज़्यादा. ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विद रेफरेंस टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सवाल है, बेसिक. स्टेटमेंट 1, दे आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. Statement 2, they operate as limitation on the tyranny of executive and arbitrary laws of legislature. Statement 3, they are absolute but not qualified. The state can impose reasonable restrictions on them. कौन सा स्टेटमेंट सही है? करेक्ट आंसर इनमें से बताना है. पहले स्टेटमेंट पे आइए. Yes, they are guaranteed by the constitution to all person without any discrimination. This statement is correct. सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलती है, फॉरनर्स को मिलती है, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि फॉरनर्स को नहीं मिलते, बाकी तो सबको मिलती है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट, दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव. यस, आर्बिट्रेरीनेस को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए दे पॉजेस लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, ऑन द पावर ऑफ स्टेट. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड इज दे आर एब्सोल्यूट बट नॉट क्वालिफाइड. ये उल्टा कर दिया गया है. दे आर क्वालिफाइड एंड नॉट एब्सोल्यूट. वाई? बिकॉज स्टेट कैन प्रोवाइड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी. एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज होते हैं. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. 1 and 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी? कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट या सेपरेशन ऑफ पावर? सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी पूछ रहा है. लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड क्या हो सकता है? See, liberty is a responsible use of freedom under rule of law. So, liberty एक responsible use of freedom है. Liberty का मतलब आप बिल्कुल free नहीं है, आप बहुत responsibly free हैं. तो responsibility
या responsible use of freedom is what is defined as liberty. और अगर चलिए एक करके ऑप्शन पे आते हैं, कमिटेड जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी इज कमिटेड टू पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इट इज कमिटेड टू पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, तो ये लिबर्टी का सेफगार्ड तो नहीं हुआ. दिस इज नॉट, इट नेवर सेफगार्ड्स लिबर्टी, इट सेफगार्ड्स द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका मतलब अगर हम सेंट्रलाइज कर दें पावर्स को, अगर हम सारी पावर सेंटर के हाथ में दे दें, अगर पावर को कॉन्सेंट्रेट कर दें सिर्फ एक हाथ में, एंड दे में एक्ट एज अथॉरिटेटिव या टोटलिटेरियन या डेस्पोटिक, उस केस में लिबर्टी हैम्पर हो जाती है, उस केस में लिबर्टी छिन जाती है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सी, इलेक्टेड गवर्नमेंट. सो इलेक्टेड गवर्नमेंट may or may not necessarily ensure liberty. For example, arbitrarily अगर स्टेट एक्ट करे, उस केस में लिबर्टी किसी भी इंडिविजुअल की चली जाएगी. इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है. स्टेटमेंट डी इज द राइट आंसर, सेपरेशन ऑफ पावर, जहां पे आर्बिट्ररीनेस की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है. देयर इज अ चेक एंड बैलेंस ऑन 3 organs and they may safeguard the liberty. So option D is the correct answer. This is also a previous year question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. With reference to official language in India, consider the following statement. Official language के ऊपर सवाल है. First statement, the constitution specify the official language of different states. Not correct पूछा है, ये ध्यान रखिए. Second statement, legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in use to the state in the state. Third statement, currently the 7th schedule of constitution specifies 14 languages. कौन सा इनमें से नॉन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये बताना है. पहले स्टेटमेंट पे आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट, एंड एट प्रेजेंट ऐसा कोई क्राइटेरिया भी नहीं है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज को स्पेसिफाई करे. ठीक है, जिसको कि इंक्लूड किया जाए, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है. तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट. तो यस, कोई भी स्टेट का लेजिस्लेचर मे और मे नॉट अडॉप्ट मोर लैंग्वेजेस, एक से ज्यादा लैंग्वेज वो अडॉप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट 7th शेड्यूल कह रहा है, सो नो, 8th शेड्यूल है. ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थे, अब 22 हो गए हैं. ये स्टेटमेंट गलत है. 8th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल नहीं है. तो ऑप्शन 1 and 3 आर नॉट करेक्ट. ऑप्शन 2 मतलब स्टेटमेंट 1 and 3 आर नॉट करेक्ट. डी इज द आंसर. क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? तो राइट टू प्रॉपर्टी अर्लियर यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, इट गॉट डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978, और इसको अब एक ऑर्डिनरी लीगल राइट बना दिया गया है. इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो दिस अमेंडमेंट omitted आर्टिकल 31 and 19 clause 1 सब clause F and inserted in their place आर्टिकल 31 को omit करके आर्टिकल 300A, ये हो गया है अब ऑर्डिनरी लीगल राइट. तो right to property is a legal right that is available to any person, and Article 300A provides that no person shall be deprived of his property save by authority of law. इसलिए option B is the correct answer. To citizens only नहीं, to any person है. Fundamental right तो है ही नहीं, neither fundamental nor legal. No, it is a legal right which is mentioned under Article 300A. 300A, ठीक है. So B is the correct answer. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the with which reference to the Constitution of India consider the following: fundamental right, fundamental duties, and DPSPs. Which of the above provision of Constitution of India are fulfilled by National Social Assistance Program launched by India? ठीक है, NSAP के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा प्रोविजन फुलफिल होता है NSAP पे। पहले नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च एक प्रोग्राम है विच सपोर्ट्स एजेड पीपल, एजेड पर्सन, विडोज, disabled persons and bereaved families on death of primary breadwinner belonging to below poverty line households। तो BPL को जो belong कर रहे हैं उनके लिए है NSAP का प्रोग्राम, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ DPSP। आर्टिकल 41 और 42 की अगर हम बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप। DPSP तो हो रहा है, ठीक है। Article 41 and 42 clearly says कि to secure right to work, education, public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement, and 42 says to make provision for just and humane conditions of work and maternity leave। ठीक है, तो इन conditions में जो है DPSPs को फुलफिल कर रहा है ये NSAP का प्रोग्राम। सी NSAP कंप्राइजेज ऑफ 5 स्कीम्स, जो कि है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम NFBS एंड अन्नपूर्णा। तो ऑप्शन बी ही है जो करेक्ट आंसर है। नन अदर ऑप्शंस कॉम्प्लाई टू द NSAP, इसलिए 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. 65th Amendment to the Constitution of India introduced National Commission for Scheduled Tribe. Not correct, यहीं पे डिस्कस कर लीजिए कौन सा करेक्ट पूछ रहा है। तो 65th Amendment नहीं था, वो 89th Amendment था। 89th Amendment of 2003 introduced National Commission for Scheduled Tribe, जहाँ पे आर्टिकल 338A को इंसर्ट किया गया था। ठीक है, और 2 सेपरेट कमीशंस, नेमली NCSC दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लास एंड NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को इंसर्ट किया गया था। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, 102 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड constitutional status for NCBC. Yes, this statement is correct. 102nd amendment sought to grant the National Commission on Backward Classes constitutional status at par with NCSC and NCST. So this statement is correct. Option B is the correct answer, 2 only. Which of the following best defines the term state? Previous year question, very important question, basic question है but बहुत अच्छा सवाल है। सी स्टेट पे अगर हम बात करें तो स्टेट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन पीपल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सट्रीम कंट्रोल। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सट्रीम कंट्रोल, दैट इज व्हाट इज डिफाइंड बाय स्टेट। ठीक है, हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। तो 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेनिटी। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेनिटी, ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्टेट के। ठीक है, तो क्लियरली क्लास 11th की NCERT में एक बॉक्स में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, ये सवाल वहीं से उठा है। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड। This does not refer to state governments. Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from government. So, government is responsible for administering and enforcing laws. Government can change with elections. State, on the other hand, refers to a political institution that represents sovereign people, जिनके ऊपर कोई extreme control नहीं है, जो ऑक्यूपाई करते हैं एक डेफिनेट टेरिटरी को। ठीक है, we can thus speak of Indian state, Nepali state, etc. Indian state has a democratic form of government. The government is one part of the state. The state refers to more than just government and can't be used interchangeably with it. तो ऑप्शंस पे आते हैं।
पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, ये 4 एलिमेंट होते हैं स्टेट के। पहला ऑप्शन है कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, यस, independent of external control and possessing an organized government. This statement is correct answer, is the correct answer. यहीं पे हमें आंसर मिल जाता है। बाकी ऑप्शंस पे आते हैं। Politically organized people of definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. ऑप्शन सी कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, नो। सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट with the central authority and executive responsible to the central authority and independent judiciary, no, this is also not. Basically 4 elements हैं, population, definite territory, sovereignty and government, ठीक है। ये 4 elements जहां भी फुलफिल हो रहे हैं वो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, पॉलिटिकल थ्योरी की जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की, वहीं से डायरेक्ट उठा था ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट्स, कंपटीशन, आइडियोलॉजी। तो क्लियरली इसका आंसर प्रिविलेजेस है। इक्वालिटी वही है जहां पे प्रिविलेजेस अवेलेबल नहीं है। तो प्रिविलेजेस क्या है? प्रिविलेजेस स्पेशल एडवांटेज है। प्रिविलेजेस इज डिफाइंड एज स्पेशल एडवांटेज, इम्यूनिटी या राइट, क्योंकि स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल को ही ग्रांट किया जाता है, किसी भी ग्रुप को ग्रांट किया जाता है, एंड इट इज ऑफन कंडीशनल ऑन मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया और ऑब्लिगेशंस। प्रिविलेजेस कैन बी लीगली और सोशली डिफाइंड एंड मे कम इन वेरियस फॉर्म्स सच एज लीगल इम्यूनिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। टू मेंटेन इक्वालिटी देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट है। रिस्ट्रेन पे आए तो रिस्ट्रेन रेफर टू लिमिटेशंस, है ना, रिस्ट्रेन रेफर टू लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस। अब रेस्ट्रिक्शंस अगर हैं तो इक्वालिटी कैसी हुई? अगर रेस्ट्रिक्शंस किसी सेक्ट के लिए, किसी ग्रुप के लिए आ रहा है तो वहां उनकी लिबर्टी कर्टेल हो रही है, वहां पे उनकी इक्वालिटी भी कर्टेल हो रही है, बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस आर फॉर सम स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल रेस्ट्रिक्टिंग देयर फ्रीडम, लिबर्टी और मूवमेंट। सी पे आते हैं, कंपटीशन ऐसा सिचुएशन है जहां पे इंडिविजुअल या ग्रुप दे स्ट्राइव फॉर अ कॉमन गोल, कॉम्पीटिंग फॉर अ कॉमन गोल, ठीक है। कंपटीशन ऐसी सिचुएशन है तो वहां पे रिकॉग्निशन, स्टेटस, रिवॉर्ड या रिसोर्सेज के लिए इट इज अनरिलेटेड टू अनइक्वालिटी। एंड सिंपली आइडियोलॉजी ऑल्सो इट इज अ सेट ऑफ बिलीफ, वैल्यू एंड प्रिंसिपल, यहाँ पे भी इक्वालिटी की कोई बात नहीं है। मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन साइड ऑफ अ क्वेश्चन रादर दैन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन, तो वोकैबुलरी भी टेस्ट हो जाती है ऐसे क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 says abolished diarchy in provinces. Statement 2 says establishment of Reserve Bank of India. 3 establishment of a public service commission. 4 adoption of diarchy at center. 5 separation of provincial budget from central budget. 6 separate electorate for depressed classes, women and labor. सवाल है रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमें देखना है। स्टेटमेंट 1 पे आते हैं, यस इट अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस, और इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था। इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। जहां पे प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर्स, एंड दिस एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, वी वेरी वेल नो आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो प्रोवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री, इसी के अंडर में आरबीआई 1934 आरबीआई एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, ठीक है। 1, 2 and 3 सही है। जहां पे
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी एंड ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी एंड अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जहां पे 2 या 2 से अधिक प्रोविंसेस का कमीशन बनाया गया था, ठीक है, बनाया जाने वाला था। तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। 4 पे आते हैं। 4 इज ऑल्सो करेक्ट जहां पे अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर की बात की गई थी। कॉन्सिक्वेंटली फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, ठीक है। तो डायरकी एट सेंटर की बात की गई थी और ट्रांसफर्ड एंड फेडरल सब्जेक्ट्स के बीच में डिवीजन की बात की गई थी। 4 इज ऑल्सो करेक्ट। 5th पे आते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम सेंट्रल बजट। नो, फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ब्रॉट दिस प्रोविजन जहां पे सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट की बात की गई थी। तो इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड नॉट 1935, राइट। सो दिस प्रोविजन बिलोंग्स टू 1919 एक्ट, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 6th स्टेटमेंट सेज कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेन एंड लेबर। यस, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था डिप्रेस क्लासेस के लिए, विमेन के लिए और लेबर क्लास के लिए। तो बेसिकली स्टेटमेंट नंबर 5 रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इन सब्सिक्वेंट वीडियोस हम लोग और भी सीरीज लेके आएंगे, पॉलिटी एमसीक्यू की, और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज के लेके आएंगे। सो दिस इज द बेस्ट वे यू कैन रिवाइज योर सब्जेक्ट प्रॉपरली पीवाईक्यूज और मॉक्स के साथ, right? So keep revising, keep solving mocks, and because prelims बिल्कुल सर पे है, बिल्कुल approaching state में है, so keep studying and I'll see you in the next video. And also I would request you, अगर आपको ये series पसंद आ रही है, videos पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इट शुड बी शेयर्ड अमंग्स masses ताकि उन्हें भी ये हेल्प करे। So thank you and I'll see you in the next video.